अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने रियासत की तश्कील के हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ तकसीम के क़वानीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। दिल्ली के दौरे के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। रियासत की जानिब से ज़ेर इल्तवा बिलों और फलाही प्रोग्रामों के बारे में तहरीरी याददाश्त पेश की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर्राज के बगैर सिंगरेनी कोयले की खानें सिंगरेनी कंपनी को अलॉट की जाएं और तरक्याती मंसूबों के लिए दिफाई अराजी दी जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन के बाद हमने पूरी तवज्जो रियासत की तरक्की पर मरकूज की है। वज़ीर आज़म को दी गई याददाश्त में जिक्र किया गया कि रियासत के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री, हर ज़िले के लिए एक नवोदिया और कस्तूरबा स्कूलों के लिए ITIR प्रोजेक्ट के लिए दोबारा इजाज़त दी जाए। उन्होंने मरकज़ से तेलंगाना में मंशियात के खात्मे और साइबर सिक्योरिटी में ताउन करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी से कहा कि वो रियासत को 29 IPS अफसरान मख्तस करें। हैदराबाद में रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए जाएं। వాస్తవమే కదా. బీఆర్ఎస్ ఎక్కడుందో ఇప్పుడు టార్చ్ లైట్ వేసి ఎత్కాల్చింది కదా. ఏడుంది బీఆర్ఎస్? సింగిల్ సీటు కూడా పార్లమెంట్లో లేదు. పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి 25 సంవత్సరాలలో ఇంత దీనావస్థ ఎప్పుడూ లేదు. ఇప్పుడు ప్రజలు కాదు, కేసీఆర్ కూడా బీఆర్ఎస్ ఏడుందని టార్చ్ లైట్ వేసి ఎత్తుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కాలగర్భం గత చరిత్ర బీఆర్ఎస్ అనేది. బీఆర్ఎస్కు గత చరిత్ర ఉన్నది కానీ భవిష్యత్తు లేదు. నిన్న లక్ష్మణ్ కూడా రాష్ట్రపతి ప్రసంగం ధన్యవాదాలు తీర్మానం మాట్లాడుతూ 5 నెలలకి విసిపోయారు ప్రజలు, ఇప్పుడు మార్పు కోరుకుంటున్నారు, ఎప్పుడు ఎలక్షన్ జరిగినా బీజేపీ రావడం ఖాయం. ఎప్పుడు జరుగుతుందని వారి ఉద్దేశం? ఏమో మీ మీద మరి అంత నమ్మకం ఉంది, ఎప్పుడైనా జరుగుతుంది వాళ్ళ కోరిక. ఉత్తరప్రదేశ్లో వాళ్ళ ప్రభుత్వం మొన్ననే వచ్చింది, ఏం జరిగింది? మణిపూర్లో వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది, ఏం జరిగింది? మహారాష్ట్రలో వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది, ఏం జరిగింది? ఇట్లా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, అట్లాగే విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన హక్కుల కోసం ఈ 2 అంశాలపైన దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని, అట్లాగే హోంశాఖ మార్చులు అమిత్ షా గారిని కలిసి రాతపూర్వకంగా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా కూడా వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ కొన్ని అంశాలు వారి దృష్టి తీసుకొచ్చాం. వాటిలో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అతిపెద్ద పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ గా ఉన్నటువంటి సింగరేణి కాలనీస్ సంబంధించి గోదావరి వ్యాలీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కోల్ బ్లాక్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆక్షన్ లేకుండా సింగరేణి పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కి కేటాయించవలసిందిగా వారిని ప్రత్యేకంగా కోరాం. అట్లాగే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ IIM సంబంధించి ఆనాటి పార్లమెంట్ లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఒక IIM ని ఇంకా 10 సంవత్సరాలు అవుతున్నా రాలేదు. దయచేసి దాన్ని కూడా శాంక్షన్ చేయమని కోరాం. అట్లాగే ఆనాటి విభజన కంటే ముందు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ITIR ప్రాజెక్ట్ పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడే కార్యక్రమంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆనాటి ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది. 2014 తర్వాత TRS పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి 10 సంవత్సరాలు దాని గురించి పట్టించుకోకుండా గాలికి వదిలేయటం వల్ల ITIR ప్రాజెక్టు మేము కోల్పోయాం. దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా ప్రత్యేక. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए अहम तजावीज़ में मरकज़ से ताउन तलब किया। हम आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी मरकज़ में BJP की क़यादत वाली NDA हुकूमत में अहम शिराकतदार हैं। उन्होंने रियासत में मरकज़ से मदद तलब की है। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने रियासत से मुतालिक मसाइल पर मरकज़ी वज़रा नितिन गडकरी और पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि नायडू दीगर मरकज़ी वज़रा से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिनमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन और वज़ीर सेहत JP नड्डा शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत के एक दिन बाद के केशव राव ने जुमेरात को राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पेश किया।
केशव राव मार्च 2020 में मुत्तफ़िका तौर पर राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए थे और उनकी मियाद 9 अप्रैल 2026 को ख़त्म होने वाली थी। ताहम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के बाद उन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। 4 जुम्मे को नई दिल्ली में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी। केशव राव पहली बार 2006 में राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए और 2012 तक खिदमत अंजाम दी। उन्होंने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। केशव राव ने 2013 में TRS, जो फिलहाल BRS है, उसमें शमूलियत अख्तियार की और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो 2014 और 2020 में दोबारा राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। उनके इस्तीफे के बाद तेलंगाना एक और ज़मनी इंतखाब के लिए तैयार है। जुमेरात को मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों की जानिब से तालीमी इदारों के लिए दी गई बंद की कॉल पर स्कूल और कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से मिला जुला रद्दअमल सामने आया। कई स्कूल इंतज़ामिया ने 4 जुम्मे की शाम वालिदैन को पैगामात भेजे जिसमें जुमेरात को स्कूल बंद रखने के बारे में बताया गया। ताहम कुछ स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहे। ग्रेटर हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने जुमेरात को GHMC हेडक्वार्टर्स में तीसरी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि अरकान ने कमेटी के इजलास में 8 आइटम्स और एक टेबल आइटम को मंजूरी दी है। ये वजाहत की गई है कि मंजूर शुदा 8 अशिया में से ज़्यादातर सड़कों और जंक्शंस की तरक्की से मुतालिक हैं। कॉरपोरेटर से कहा गया कि वो नए ओहदेदारों के साथ ताउन करें क्योंकि GHMC में आला ओहदों पर कई तब्दीलियाँ हुई हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसी फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला करने के साथ नदी के किनारे पर बफर जोन को निशानजद करने के अलावा नदी पर तामीर दहाइयों पुराने पुलों के इस्तेहकाम का तज्जिया करने के लिए इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। मूसा नदी पर तकरीबन 17 पुलों के इस्तेहकाम का जल्द ही तज्जिया किया जाएगा। इस मंसूबे के लिए मजमूई मास्टर प्लान की तैयारी के लिए 55 कंसल्टेंट्स को मदऊ किया गया है। मूसा नदी के माफ़ कीजिएगा, कंसल्टेंट्स को मदऊ किया गया है। इसकी तादाद नहीं बताई गई है। मूसा नदी के 55 किलोमीटर पर मुहित साइट एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए 17 पुलों के इस्तेहकाम का तज्जिया करने के लिए मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसियों के साथ काम कर रही है। उनमें से ज़्यादातर पुल दहाइयों पहले तामीर किए गए थे। अगर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 10 साल कबल चंद पुलों के इस्तेहकाम का तज्जिया किया था, लेकिन मुख्तलिफ अज्जा ख़ास तौर पर ढांचे के इस्तेहकाम और हिफाजत की जांच की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर पुराना पुल 1578 में तामीर किया गया था और उसने मूसा नदी में 1908 में आई तुग़यानी को बर्दाश्त किया था। रियासती हुकूमत अब खूबसूरती और सयाहत को फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने का मनसूबा बना रही है। रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में अपनी वजारत के मुख्तलिफ महकमों का अचानक मुआयना किया। सरकारी मुलाजिमीन की बरवक्त हाज़िरी की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर इत्तलात तुम्मला नागेश्वर राव ने जुमेरात को कहा कि दफ्तर में मिलकर काम करने से लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में मदद मिलेगी। LV स्टेडियम के करीब महकमे ज़राअत के दफ्तर का अचानक मुआयना करने वाले वज़ीर कम हाज़िरी से नाराज़ हो गए। अपने दौरे के वक्त उन्हें अपनी सीटों पर चंद मुलाजिमीन ही मिले। उन्होंने मुतलबा किया कि वो चाहते हैं कि मुलाजिमीन जुमे से वक्त पर दफ्तर आएँ, बसूरत दीगर डिपार्टमेंटल एक्शन लेने से दरीक नहीं किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत के डायरेक्टर के मुतालबा वज़ीर ज़राअत ने डायरेक्टर से मुतालबा किया कि वो मुलाजिमीन की हाज़िरी के नमूनों की निगरानी करें और रिपोर्ट पेश करें। इसी तरह एक और वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में अपनी वजारत के मुख्तलिफ महकमों का अचानक मुआयना किया।
కానీ మనకు డిసిప్లిన్ ఎక్కువైంది. మేము ఉదయం 4 గంటలకి వెళ్ళి हालिया इंतखाबात में धचके के बावजूद बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस बार अब किसान सरकार के एजेंडे को जारी रखने और मुल्क में किसानों पर मरकूज हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करने का अज़्म किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम का फैसला मुल्क भर के किसानों के लिए बड़ी मायूसी का बाइस है। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के किसान जो अपनी अपनी रियासतों में तेलंगाना मॉडल की तरह तरक्की चाहते थे। बीआरएस के सरबराह ने जुमेरात को अपनी एरावली रिहाइशगाह पर खम्मम, महबूबाबाद, वेमुलावाड़ा, नरसापुर, इब्राहिमपट्टनम और दीगर असेंबली हलकों के हामियों के साथ एक इजलास तलब किया था और अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने इस बात का आदा किया कि तेलंगाना की मुकम्मल तब्दीली पार्टी का बुनियादी हदफ है। केसीआर ने कहा कि बीआरएस और हुकूमत में तेलंगाना एक मॉडल रियासत थी जिसने बिजली, पानी, पीने के पानी और ज़राअत जैसे शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तेलंगाना के मंचिरियाल टाउन के माता शिशु अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट के नतीजे में मरीजों के इलाज में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये वाक़या कल शब पेश आया। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरीजों के रिश्तेदारों ने उसे अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि बिजली की सप्लाई मुतासिर होने की वजह से मरीज़ परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जनरेटर की कोई सहूलत नहीं है। अस्पताल का अमला लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को इस अस्पताल में इलाज के लिए बड़ी तादाद में लाया जाता है और इस तरह की सूरत हाल नामुनासिब है। इस अस्पताल को इलाज के लिए बच्चों को लाने वालों की ज़्यादातर तादाद गरीबों की होती है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की सूरत हाल के आदा से रोकने के इक़दाम करें। చిన్నపిల్ల తల్లులు హాస్పిటల్లో ఉంటారు, జనరేటర్ సౌకర్యం లేదు, ఎట్లా ఇట్లా జరిగితే ఎట్లా, జనరేటర్స్ ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అని అడిగితే సిబ్బంది చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు, చాలా దురుసుగా చెప్తున్నారు వాళ్ళు మనకి. ఇట్లా అయితే ఎట్లుంటుంది సిటీ టౌన్లో మాతా శిశు హాస్పిటల్ మంచిర్యాల పిల్లలకు, చిన్న చిన్న పిల్లలకు డైలీ ఇక్కడ 10ల సంఖ్యలో కాన్పులు జరుగుతున్నాయి. వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా నిరుపేదలై ఉంటారు. వాళ్ళకందరికీ ఇటువంటి సౌకర్యాలు లేకుండా ఉండడం వల్ల ఎంత చిన్నపిల్లలు ఎంత అవస్థలు పడతారు, చిన్నపిల్ల తల్లులు ఎంత అవస్థ పడతారు. దీన్ని కొద్దిగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి, కలెక్టరేట్కు కూతబెడుకు దూరంలో లేదు ఇది, డిఎంఓ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి దీన్ని అని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు వెంకటస్వామి. ఎంతసేపు అయింది కరెంట్ పోయి? గంట అయితే పొద్దున కరెంట్ ఉండలేదు, అసలు పోనే పోతాను, నీళ్ళు కూడా లేదు సార్. పాపను ఆపరేషన్కి తీసుకుపోయిన వెంటనే అన్నీ రెడీ చేసినాక కరెంటు పోయింది. మళ్ళీ బయటికి తీసుకొని వచ్చేది. మళ్ళీ 1 గంట వరకు కరెంట్ వచ్చినాక మళ్ళీ తీసుకెళ్ళేది. పాప కుక్కల బాక్స్లో పెట్టారు, కొంచెం అవస్థ ఉన్నదని అన్నారు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కరెంట్. मंचिरियाल ज़िले के कोटापल्ली मंडल के एदुला बंदम गांव में खातून को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब 3 माह की ताख़ीर के बाद एक्सपायर्ड कल्याण लक्ष्मी चेक जारी किया गया। जे सरिता और श्रीनिवास की बेटी मेघना की शादी 23 फरवरी 2023 को हुई थी। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत माली इमदाद का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। 3 अप्रैल 2024 को सरिता के नाम 1,01,16 रुपये का चेक मंजूर किया गया। ताहम चाशुम्बे के रोज़ 3 माह की ताख़ीर के बाद सरिता को ये चेक हवाले किया गया। सरिता की खुशी उस वक्त मायूसी में बदल गई जब बैंक के अमले ने चेक वापस कर दिया, ये बताकर कि इसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। ख़ानदान ने हुक्काम की लापरवाही और चेक की तैयारी में ताख़ीर पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। सरिता और मेघना ने 3 माह तक हुक्काम की जानिब से इत्तला ना देने पर अपनी नाराज़गी जाहिर की।
पुलिस ने फोन टैपिंग केस की तहकीकात तेज करते हुए साबिक इंटेलिजेंस सरबराह प्रभाकर राव और श्रावण राव के पासपोर्ट जब्त करने का मंसूबा बनाया है। पुलिस ने इस मामले पर रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी से भी राब्ता किया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि IAS अफसरान बशमूल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोनाल्ड रॉस के फ़ोन टैप किए गए थे। प्रभाकर राव और श्रावण राव जो इस वक्त बैरून मुल्क में हैं, उन्हें वापस लाने के लिए इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तफ्तीशी टीम ने दावा किया कि मुलजिमीन ने 62 हार्ड डिस्कों को तबाह किया है, जिनमें रियासती इंटेलिजेंस ब्यूरो का अहम डेटा बशमूल फ़ोन टैपिंग की मालूमात शामिल थी। उन पर माओनवाज़ों के बारे में मालूमात को तबाह करके दाखिली सलामती से समझौता करने का भी इल्ज़ाम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हलके कोडंगल में खर्च की वजह से एक किसान ने खुदकुशी कर ली। कोडंगल हलके के बुमरा स्पेटा मंडल के मेटिला कुंटा गांव से मुतवफ़ी भीमराम नरसिम्लू ने फसल की सरमायाकारी के लिए जो कर्ज लिया था वो उसे अदा नहीं कर सका। उसने अपने गांव के एक दरख्त से लटक कर इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वाक़े को लेकर BRS के कायद हरीश राव ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। सिद्दीपेट जिले के चिरियाल मंडल के नरसैयापल्ली गांव में पुलिस की बर्बरियत का एक मामला सामने आया, जिसने फ्रेंडली पुलिसिंग पर सवालात खड़े कर दिए हैं। एक कांस्टेबल M करुणाकर ने ज़मीन के तनाज़े के दौरान एक नौजवान किसान चिंतला चंदू की तौहीन की और धमकी दी। करुणाकर ने चंदू को गाली गलौज करते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हें थाने बुलाऊं तो तुम्हें थाना आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा अंजाम देखूंगा और देखूंगा कि तुम कैसे बचते हो। फिर उसने चंदू के गालों पर थप्पड़ मारा। कांस्टेबल ने केस से जुड़ी एक खातून को भी धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारे गांव आऊंगा और देखूंगा कि तुम्हारा बेटा कैसे बचता है। अपनी जान के खौफ से चंदू ने कांस्टेबल करुणाकर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। సిటీకి పోయొచ్చు నేను చేయండి నేను పొద్దున చేసిండు నాకు పొద్దున చేసిండు మీరు నన్ను కొట్టారు కదా సార్ మీరు నన్ను కొడతారు కదా సార్ మీరు నన్ను కొట్టారు కదా మీరు నన్ను కొట్టారు కదా నేను మీరు కొట్టిన వచ్చినామే కొట్టిర్రు మీరు ఎంక్వైరీ కానీ వచ్చినామే కొట్టిర్రు మీరు ఇప్పుడు నా చెంప మీద కొట్టిర్రు ఇప్పుడు क्रिकेट बेटिंग में 1 लाख रुपए हारने के बाद एक लड़के ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के रेपुनी गांव में पेश आया। इतलात के मुताबिक सिंधु संजय रेड्डी ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग में रकम हार गया था, जिसके बाद उसके वालिदैन ने उसकी सरजनिश की। मायूसी के आलम में उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान है। उसने कहा कि जुमेरात से हफ्ते तक रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। इतवार और पीर को कई अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इतवार को भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनपर्ती अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कई मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से गरज चमक और तेज़ हवाएं चलेंगी। मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद, वरंगल, जनगांव अजला में पीर को भारी बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकोंडा, सिद्दीपेट, भोनगिर, हैदराबाद, मेडचल, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस सिलसिले में मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ होने से 120 से ज़्यादा अफराद की हलाकत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। उनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद इंतज़ामी कमेटी के अरकान और बाबा के सेवादार यानी खादिम हैं। IG अलीगढ़ रेंज सुलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि 121 महलूकीन की शिनाख्त हो चुकी है और उन सभी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। इस मामले की तफ्तीश के लिए कई टीमें तश्कील दी गई हैं। गाड़ी थी, इसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए
घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली हैं, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके अभी 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन ने एक बार फिर वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। हेमंत सोरेन ने 154 दिनों के बाद एक बार फिर ये जिम्मेदारी संभाली। राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में गवर्नर CP राधाकृष्णन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के वजीर आला बने हैं। चाशुम्बा यानी 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। काबीना के बाकी वज़रा 7 जुलाई को या किसी और दिन हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में मुस्तफ़ी होने वाले वज़ीर आला चंपई सोरेन, झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर और झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी आज अचानक दिल्ली के GTB नगर पर पहुंचकर वहां मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने ज़मीन पर बैठकर मजदूरों से उनके मसाइल भी सुने और उनके साथ काम भी किए। राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में राहुल गांधी मजदूरों के साथ ज़मीन पर बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूरों से राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो कुछ लोगों के साथ ज़मीन पर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द मजदूर बैठे हैं जिनके साथ राहुल गांधी बात कर रहे हैं। इस ताल्लुक से कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के साथ कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं। थोड़ा पीछे जाओ भाई, अरे पीछे जाओ सर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतकर वतन वापस पहुंच गई है। टीम इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पहुंची, जहां खुसूसी बस का इंतजाम किया गया था। पहले इमिग्रेशन से मुतालिक कार्रवाई के बाद तमाम खिलाड़ी ITC मोरिया होटल पहुंचे। हिंदुस्तानी टीम की एक झलक देखने के लिए बहुत से शायकीन
पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और शायकीन का जोश देखने लायक था। जैसे ही टीम इंडिया एयरपोर्ट से बाहर आई, शायकीन ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए और अपने चहीते खिलाड़ियों के दीदार के लिए उमड़ पड़े। बहुत से शायकीन ऐसे थे जो रात गए एयरपोर्ट पहुंचे थे ताकि चैंपियन खिलाड़ियों को देख सके। वीडियो में इंडियन कोच राहुल द्रविड़ को भी देखा जा सकता है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत टीम के कई खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ देखे जा सकते हैं। दरिया असना रोहित शर्मा को भी ट्रॉफी लहराते हुए देखा गया। आलमी फातेह हिंदुस्तानी टीम के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पर शायकीन के सरों का समंदर जमा हुआ। मरीन ड्राइव पर लाखों शायकीन मौजूद हैं। इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए मरीन ड्राइव से वानखाड़े तक पार्क करने की कोई जगह नहीं है। चैंपियन बन गई T20 हिंदुस्तानी टीम। 17 साल बाद शायकीन इस लम्हे का मुशाहिदा कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जुमेरात की सुबह वतन वापस लौटने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। BCCI के सदर रॉजर बिन्नी और सेक्रेटरी जयशाह ने वज़ीर आज़म को नंबर 1 की जर्सी पेश की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान आज सुबह खुसूसी तैयारी चैंपियंस वर्ल्ड कप 2014 से दारुल हुकूमत के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जैसे ही उतरे, वहां मद्दाहों की बड़ी तादाद ने टीम का शानदार इस्तकबाल किया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जुमेरात को यहूदी मुल्क पर 200 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए। इसके अलावा 20 के करीब ड्रोन से भी हमले किए गए। इस हमले में कई इसराइली फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने कहा कि कुछ मिसाइल लेबनान से उनकी हुदूद में गिरे, उनमें से बहुत से रोक लिए गए थे। अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने एक आला कमांडर की हलाकत का बदला लेने के लिए किया। दरअसल इसराइल ने चारशंबे को जुनूबी लेबनान के शहर तायर पर हमला किया। उसमें हिजबुल्लाह का आला कमांडर मोहम्मद निमान नासिर मारा गया था। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की हलाकत की तस्दीक की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले के बाद इसराइल के वज़ीर दिफा गैलेंट ने कहा कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए इसराइल तैयार है। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए जुमेरात को मुल्क भर के तकरीबन 40,000 पोलिंग मराकज़ पर वोट डाले जा रहे हैं। दरिया असना वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने भी अपना वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी अहलिया अक्षिता मूर्ति भी उनके साथ नज़र आ रही हैं। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, लेबर पार्टी को अक्सरियत हासिल करने से रोकने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दें, वरना टैक्सों में इजाफा होगा। याद रहे कि इंतखाबात के लिए 25 जनवरी तक का वक्त होने के बावजूद वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने 22 मई को ऐलान किया था कि मुल्क 4 जुलाई को वोट डालेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के 650 हल्कों में तकरीबन 46.5 मिलियन वोटर्स के वोट डालने की तवक्को है। किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के लिए 326 सीटें जीतनी होगी। मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी जमातें लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स, रिफॉर्म यूके, स्कॉट्स नेशनल पार्टी और ग्रीन पार्टी हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।